بلیٹن کا آغاز کریں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ پنجاب اسمبلی کے اجلاس میں کل مزید 5 بل پیش کیے جائیں گے۔ پنجاب لوکل گورنمنٹ ترمیمی بل 2025 پیش ہونے والے بلوں میں شامل۔ کل اجلاس میں پری بجٹ بحث کا آغاز بھی کیا جائے گا۔ دی پنجاب پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ بل 2025 بھی کل ایوان میں پیش کیا جائے گا۔ مزید بتائیں گے حمزہ خورشید۔ جی حمزہ، اپڈیٹ کیجیے گا۔ کل ہونے والے پنجاب اسمبلی کے 21ویں اجلاس کا معاملہ ہے۔ پنجاب اسمبلی کے اجلاس میں کل مزید 5 بل پیش کیے جائیں گے، جبکہ ذرائع کا کہنا ہے کہ پنجاب لوکل گورنمنٹ ترمیمی بل 2025 پیش ہونے والی بلوں کی فہرست میں شامل ہے، جبکہ کل اجلاس میں پری بجٹ بحث کا آغاز بھی کیا جائے گا، جبکہ آغاز کی صدارت اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان کریں گے۔ اس کے علاوہ اگر میں بتاؤں تو ذرائع کا کہنا ہے کہ کل کی فہرست میں پنجاب پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ بل 2025 کی بھی فہرست میں شامل ہے، جبکہ اجلاس کا آغاز کل 2 بجے ہوگا اور اجلاس کا آغاز جو ہے وہ تلاوت قرآن پاک سے کیا جائے گا، جب قومی ترانہ بھی جو ہے وہ ایوان میں بجایا جائے گا، جبکہ پنجاب اسمبلی کے کل کے اجلاس میں مزید 5 بل جو ہیں وہ پیش کیے جائیں گے، یہ کہنا ہے ذرائع کا۔ جی حمزہ، شکریہ۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت صوبائی کابینہ کا اجلاس 90 نکاتی ایجنڈے پر غور۔ انڈسٹریلائزیشن کے لیے اہم فیصلہ۔ نگہبان رمضان پیکج کے لیے 30 ارب روپے کی منظوری۔ طلباء کے لیے خصوصی اسٹوڈنٹ ٹریول کارڈ متعارف کروانے کی تجویز پر اتفاق۔ ٹرام سروس شروع کرنے کے پلان بھی طلب۔ 5960 کانسٹیبل بھرتی کرنے کی بھی منظوری دی گئی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت پنجاب کابینہ کے 23ویں اجلاس میں اہم فیصلے۔ اسپیشل اکنامک زون انڈسٹریل اسٹیٹ، اسمال انڈسٹریل اسٹیٹ کے لیے زیرو ٹائم ٹو سٹارٹ پالیسی کی منظوری۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا کہنا ہے انڈسٹری لگانے کے لیے مشکل پروسیس کو آسان بنائیں گے۔ بزنس مین جتنی انڈسٹری لگا سکتے ہیں لگائیں، فوری طور پر NOC ملے گا۔ پنجاب کابینہ نے ماس ٹرانزٹ سسٹم میں اسپیشل افراد اور سینئر سٹیزن کے لیے مفت سفر کی سہولت کی منظوری دے دی۔ طلباء کے لیے خصوصی اسٹوڈنٹ ٹریول کارڈ متعارف کرانے کی تجویز پر اتفاق۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے ٹرام سروس شروع کرنے کے لیے پلان طلب کر لیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا کینسر کا جدید طریقہ علاج بھی متعارف کرانے کا فیصلہ۔ کینسر کے مریضوں کی کیموتھراپی کے متبادل کرائیوبلیشن مشین کے لیے 580 ملین کے فنڈز کی منظوری۔ صوبائی کابینہ نے اسپیشل ایجوکیشن سینٹرز کو سینٹر آف ایکسیلنس بنانے کے لیے فنڈز منظور کر لیے۔ صوبے میں اسپیشل افراد کے لیے خصوصی ٹرانسپورٹ متعارف کروانے کا اصولی فیصلہ۔ پنجاب پولیس میں 5960 کانسٹیبل بھرتی کرنے کی بھی منظوری۔ پنجاب میں ایکسل روڈ مینجمنٹ سسٹم کے نفاذ کے لیے موٹر وہیکل آرڈیننس میں ترمیم کی جائے گی۔ پنجاب میں اگلے سال سے نگہبان رمضان پیکج کا ATM کارڈ متعارف کرایا جائے گا۔ نگہبان رمضان پیکج کے لیے 30 ارب روپے کی منظوری، 30 ملین افراد مستفید ہوں گے۔ مریم نواز کا اجلاس میں کہنا تھا کہ پہلی مرتبہ عوام کو لائنوں میں نہیں لگنا پڑے گا، بلکہ گھر بیٹھے 10,000 روپے ملیں گے۔ پنجاب کابینہ نے ماس ٹرانزٹ اتھارٹی میں 127 جبکہ چائلڈ پروٹیکشن بیورو میں 87 اسامیوں پر بھرتی کی منظوری بھی دی، جبکہ ریسکیو سروس کو پہلے مرحلے میں 117 نئی ایمبولینسز مہیا کی جائیں گی۔ محمد حسن رضا، لاہور نیوز۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا جشن اسٹیم کے لیے منتخب تمام 1100 طلباء کو لیپ ٹاپ دینے کا اعلان۔ مریم نواز کہتی ہیں میرے پاس جو بھی وسائل ہیں وہ سب آپ پر نچھاور کروں گی۔ 30,000 بچوں کو اسکالرشپس دیے ہیں۔ طلباء کسی سیاسی جماعت کا اہلکار کار نہ بنے۔ وزیر اعلیٰ KP مجھ پر ذاتی حملے کرتے ہیں۔ محکمہ تعلیم پنجاب کا جشن اسٹیم کا شاندار انعقاد۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ 8,000 سے زائد طلباء نے اپنی قابلیت کے جوہر دکھائے۔ طلباء کے شاہکار سائنس، انجینئرنگ، آرٹس اور ریاضی پر مشتمل تھے۔ پنجاب بھر سے منتخب 1100 ونرز شریک ہوئے۔ اسٹیم مقابلوں میں 14,000 سے زائد اساتذہ نے بھی حصہ لیا۔ کیش پرائز کے لیے 1100 میں سے 7 ماڈلز شارٹ لسٹ ہوئے۔ جشن اسٹیم میں 110 منتخب ماڈلز نمائش کے لیے پیش کیے گئے تھے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے منتخب کیے گئے تمام 1100 طلباء کو لیپ ٹاپ دینے کا فیصلہ کیا۔ مریم نواز نے کہا کہ ہمارے بچوں میں بہت صلاحیت ہے، تھوڑی سی توجہ سے پوری دنیا فتح کر سکتے ہیں۔ سرکاری اسکولوں کا معیار تعلیم ابھی نجی اسکولوں سے بہت پیچھے ہے۔ کلین انرجی پروجیکٹس میں بچوں نے اسمارٹ سٹی کا ماڈل بنایا۔ رانا سکندر، آپ نے ان سب بچوں کے لیے لیپ ٹاپس کا بندوبست کرنا ہے۔ لیپ ٹاپس کو کنسٹرکٹیو کاموں کے لیے یوز کرو، ریسرچ کے لیے یوز کرو۔ میں ٹیچر سے بھی یہ ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ آپ اپنے فرض سمجھ کے ان بچوں کو جو ہے وہ تعلیم دیں، ان بچوں کو ان کی کیریکٹر بلڈنگ کریں، ایک ایک بچے کے ساتھ انوالو ہوں۔ یہ
जो किरदार है नेशन बिल्डिंग के अंदर वो बहुत बड़ा किरदार है। माँ बाप से बड़ी जिम्मेदारी आप पे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ का मजीद कहना था कि साइंस लेबॉर्ट्रियों को अपग्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे पास जो भी वसाइल हैं वो सब आप पर निछावर करूंगी। तलबा किसी सियासी जमात का आलाकार न बने। वज़ीर आला केपी के मुझ पर जाती हमले करते हैं। आपने मरियम नवाज शरीफ से ये वादा करना है, मैंने आपसे वादा किया है कि मैं आपको इंशाअल्लाह ताला जो आपके लिए कर सकूंगी वो करूंगी, लेकिन आपने मरियम नवाज शरीफ से ये वादा करना है कि कभी भी अपने मुल्क के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाओगे। किसी के सियासी मकासद का ईंधन बनने के लिए बाहर निकलो और मेट्रो बस को आग लगा दो तो क्या कहोगे? अभी रिसेंटली खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर ने मेरे पे एक ज़ाती हमला किया और आप देख लो, ज़रूर गूगल पे जाके देखना, रिसर्च करो, यूट्यूब पे जाके देखो उन्होंने क्या बात की। इस मौके पर तलबा में नक़द इनामात और सर्टिफिकेट्स भी तकसीम किए गए। कैमरा टीम के हमरा हसन रजा, लाहौर न्यूज़। वज़ीर आला मरीम नवाज कहती हैं कि पंजाब हुकूमत ख़वातीन और लड़कियों को साइंसी और तकनीकी मैदान में आगे लाने के लिए अमली इक़दाम कर रही है। होनियार स्कॉलरशिप प्रोग्राम से हज़ारों तालिबात को मुकम्मल न्यूट्रिशन फ़ीस दी जा रही है। ख़वातीन और लड़कियों के आलमी दिन बराए साइंस पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का ख़ुसूसी पैगाम। मरियम नवाज का कहना है कि साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया में ख़वातीन का किरदार नागुज़ीर है। तरक्की के लिए अपनी बेटियों को जदीद अलूम और IT की महारतों से आरास्ता करना होगा। पंजाब में अब किसी बेटी का ख्वाब वसाइल की कमी के बायस अधूरा नहीं रहेगा। मरियम नवाज का मजीद कहना है कि लैपटॉप स्कीम का मकसद तालिबात को जदीद अलूम और टेक्नोलॉजी तक रसाई फराहम करना है। लैपटॉप स्कीम से हमारी बेटियां अपनी तालीमी और पेशा वराना महारतों को मजीद निखार सकेंगी। एडवांस IT ट्रेनिंग प्रोग्राम से खवातीन आलमी डिजिटल मार्केट में नुमाया मकाम हासिल कर रही हैं। अपनी बेटियों को हर वो सहूलत देंगे जो साइंस, टेक्नोलॉजी और IT में आलमी मयार के मुताबिक आगे बढ़ने में मदद दे। अवाम बिलखसूस तालिबात के लिए लाहौर में मुफ्त वाईफाई प्रोग्राम का आगाज किया गया है। लाहौर में कानून के अलंबरदार फिर आपे से बाहर हो गए। मजंग में वकला का पुलिस पार्टी पर धावा बहिमाना तशद्दुद से थानेदार जाँ बहक हो गया। वकला चेक डिसऑनर केस के इश्तिहारे को पुलिस से छुड़ा कर ले गए। लाहौर में कानून के अलमबरदारों के हाथों कानून के मुहाफिज की दुर्गत। मजंग में बुकला का पुलिस पार्टी पर धावा बहिमाना तशद्दुद से थानेदार जहांबक बुकला चेस्ट डिसऑनर केस के इश्तिहारी को पुलिस से छुड़ा कर ले गए। शादबाग इन्वेस्टिगेशन पुलिस के ASI शाहिद और जमील ने इश्तिहारी को पकड़ने के लिए छापा मारा था। बुकला और साथियों के तशद्दुद से ASI शाहिद की हालत गैर, अस्पताल पहुँचने से पहले ही दम तोड़ गया। IG पंजाब का अफसोसनाक वाक़े पर नोटिस, CCPO लाहौर से रिपोर्ट तलब। SSP इन्वेस्टिगेशन लाहौर ने जाय वकुआ और डेड हाउस में ASI मोहम्मद शाहिद की नाश का मुलाहिजा किया। SSP इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद नवीद ने कहा कि ASI शाहिद ने अदालत के बाहर इश्तिहारी अदील को गिरफ्तार किया। 8 बुकला के गिरोह ने इश्तिहारी अदील को छुड़ाने के लिए पुलिस पार्टी पर हमला कर दिया। CCPO लाहौर बिलाल सदीक उमियाना का कहना है कि वाक़े की तमाम पहलुओं से तफ्तीश की जा रही है। मोहम्मद शाहिद को शहीद करने वाले बुकला को जल्द गिरफ्तार करके कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। FIA का इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस अनासर के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। रवां साल के दौरान अब तक 46 मुलज़मान को गिरफ्तार कर लिया गया है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की हिदायत, इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस अनासर के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। FIA ने रवां साल अब तक होने वाली कार्रवाइयों की तफसील जारी कर दी। इंसानी स्मगलरों के खिलाफ 153 मुकदमात दर्ज, 46 को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार मुलज़मान में इंतहाई मतलूब इश्तिहारियों और कश्ती हादसात में मुलव्वस इंसानी स्मगलर्स भी शामिल। रवां साल के दौरान 58 मुकदमात के चालान मजाज अदालतों में जमा करवाए जा चुके हैं। 13 मुकदमात में मजाज अदालतों ने मुलज़मान को सजाएं सुनाई। डायरेक्टर FIA लाहौर जोन सरफराज खान विरक का कहना है कि मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाए जा रहे हैं। इंसानी स्मगलरों की गिरफ्तारी के लिए इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जारी है। डायरेक्टर FIA ने खबरदार किया कि डंकी मौत का खेल है, बैरून मुल्क जाने के लिए कानूनी और महफूज रास्ता इख्तियार करें। फहद अमीन, लाहौर न्यूज़। श्रीलंकन कौंसल जनरल यासीन जोया का ड्रग एडवाइजरी ट्रेनिंग हब का दौरा। लाहौर में मनशियात के खिलाफ जारी आगाही मुहिम के हवाले से गुफ्तगू की। तालीमी इदारों में ड्रग का बढ़ता रुझान, इलाज की सहूलियात पर भी तबादला ख्याल किया गया।
श्रीलंकन कौंसल जनरल यासीन जोया ने ड्रग एडवाइजरी ट्रेनिंग हब का दौरा किया। कंसल्टेंट इंसदाद मंशियात मुहिम सैयद जुल्फिकार हुसैन ने यासीन जोया को ब्रीफिंग दी। वाइस चेयरमैन ड्रग एडवाइजरी सैयद मोहसिन, सेक्रेटरी जनरल अदील राशिद, फवाद मुगल, माहिर तालीम हसन अशरफ चीमा, जहीर अहमद, डॉक्टर इमरान और अब्दुल रहीम समेत दीगर ने शिरकत की। मंशियात के बढ़ते रुझान पर गुफ्तगू हुई। ड्रग एडवाइजरी ने नौजवानों को मंशियात से पाक करने का अज़म जाहिर किया। लंकन कौंसल जनरल ने ड्रग एडवाइजरी की काविशों को सराहा। यासीन जोया का कहना था मंशियात के इस्तेमाल और फैलाव को भी रोकना है। कितनी ज़बरदस्त किस्म की जो है ये एक्टिविटी कर रहे हैं और ड्रग्स के लिए और जो हमारी आने वाली जो जनरेशन है उसके लिए ये कितना बड़ा काम कर रहे हैं। और मेरी ये ख्वाहिश है कि जिस तरीके से ये काम कर रहे हैं इनको जो है इनका ड्यू शेयर मिलना चाहिए और ये जो अवेयरनेस कैंपेन है इसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहिए। तकरीब के अख्ताम पर मोअज़्ज़िज़ मेहमान को एजाज़ी अवार्ड से नवाजा गया। कैमरामैन मोहम्मद बिलाल के साथ आतिफ परवेज, लाहौर न्यूज़। लाहौर कैंट में नेज़ाबाजी के दिलचस्प मुकाबलों का दूसरा रोज़ 9 ममालिक के खिलाड़ियों ने टेंट पैकिंग में हिस्सा लिया। दिन भर जारी रहने वाले मुकाबले में फातेह सऊदी अरब की हुई। लाहौर के फोर्ट्रेस स्टेडियम में नेज़ाबाजी के दिलचस्प मुकाबलों का दूसरा रोज 9 ममालिक के खिलाड़ियों ने टेंट पैकिंग के शानदार खेल का मुजाहरा किया। 5 बैनुल-अक़वामी टीमों ने आर्चरी के मुकाबलों में भी हिस्सा लिया। सदर इंटरनेशनल टेंट पैकिंग फेडरेशन साहबजादा सुल्तान मोहम्मद अली ने कहा कि पाकिस्तानी शाह सवार आलमी खिलाड़ियों से मुकाबले में बहुत कुछ सीखेंगे। मुल्क में इंटरनेशनल खिलाड़ियों का आना बहुत बड़ी कामयाबी है। खुशाइन चीज़ है कि पाकिस्तान इतने बड़े मुकाबलों को होस्ट कर रहा है और 9 कंट्रीज़ का किसी एक कंपटीशन में इकट्ठे होना इटसेल्फ एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और ये जितनी भी कंट्रीज़ हैं सारी वर्ल्ड चैम्पियंस हैं, जिनमें साउथ अफ्रीका वर्ल्ड चैम्पियन रह चुका है, ओमान है, इजिप्ट है और करंट जो हमारे वर्ल्ड चैम्पियन हैं सऊदी अरेबिया, ये सारे पार्टिसिपेट करें। पाकिस्तान और सऊदी अरब के माबैन दिन भर में कांटेदार मुकाबला जारी रहा। कांटेदार मुकाबले में फतह सऊदी अरब की हुई। आलमी खिलाड़ियों ने शानदार इवेंट करवाने पर वज़ीर आला पंजाब का शुक्रिया भी अदा किया। I am very happy to be here at the horseback archery event and I would like to thank CM Punjab and the government of Pakistan for this world level event. It's nice to be here in Pakistan. We co-organize first time this international event in Pakistan. गैर मुल्की खिलाड़ियों ने नेज़ाबाजी के खेल में अपनी फुर्ती और महारत का मुनफरिद अंदाज अपनाकर इवेंट को 4 चांद लगा दिए। पंजाब यूनिवर्सिटी में ख़वातीन की इंटरवर्सिटी फ़ुटबॉल चैम्पियनशिप का आगाज़ मशीर वज़ीर आज़म राना मशहूद कहते हैं, पाकिस्तान आज टेक ऑफ कर रहा है। हमारे नौजवान हर मैदान में कारकर्दगी दिखा रहे हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी में ख़वातीन की 15वीं इंटरवर्सिटी फुटबॉल चैम्पियनशिप शुरू। फुटबॉल चैम्पियनशिप में मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ की 14 टीमें हिस्सा ले रही हैं। मशीर वज़ीर आज़म बराए यूथ अफेयर्स राना मशहूद तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी थे। चैम्पियनशिप का आगाज़ मार्च पास से हुआ। राना मशहूद ने वाइस चांसलर डॉक्टर मोहम्मद अली शाह के हमरा पंजाब यूनिवर्सिटी में वुमेन बॉक्सिंग टैलेंट हंट का भी इफ्तिताह किया। मशीर वज़ीर आज़म ने खिताब में कहा कि आज पाकिस्तान टेक ऑफ कर रहा है। हमारे नौजवान हर मैदान में कारकर्दगी दिखा रहे हैं। हम पर 5th जनरेशन वार मुसल्लत की गई, जिसका मकसद नौजवानों में मायूसी फैलाना था। नवाज शरीफ की क़यादत में शहबाज शरीफ और मरियम नवाज दिन रात मेहनत कर रहे हैं। आज पाकिस्तान के टेक ऑफ का टाइम है। जो 5th जनरेशन वॉर पाकिस्तान पर मुसल्लत की गई थी, जो हमारे नौजवानों के जहनों में जहर घोलने की कोशिश की गई थी, 5th जनरेशन वॉर है क्या? मायूसी फैलाना, इंतशार फैलाना। आज मियां नवाज शरीफ की क़यादत में शहबाज शरीफ साहब और मरियम नवाज दिन रात पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं, पाकिस्तान के नौजवानों के लिए काम कर रहे हैं, आपके लिए काम कर रहे हैं, आपके मुस्तकबिल के लिए काम कर रहे हैं। क्योंकि आपका मुस्तकबिल बनेगा तो पाकिस्तान का मुस्तकबिल बनेगा। फुटबॉल चैंपियनशिप में शरीक तालिबात ने कहा उन्होंने इवेंट के लिए बहुत मेहनत की है और अब अच्छा खेल पेश करेंगी। हम लोग पंजाब यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इंशाल्लाह हम लोग इस बार जीत के जाएंगे और हम इस बार इंशाल्लाह ट्रॉफी हमारी टीम ने बहुत मेहनत की, हमारे कोचेज ने हम पे बहुत वर्क किया और इंशाल्लाह इस दफ़ा हम विन होंगे इंशाल्लाह। और मैं विंगर खेलती हूँ। हम लोग पंजाब यूनिवर्सिटी की टीम की तरफ से खेल रहे हैं और इस मरतबा इंशाल्लाह हम लोग जीतेंगे और ट्रॉफी उठाएंगे। पंजाब यूनिवर्सिटी में इंटरवर्सिटी फुटबॉल चैंपियनशिप 3 रोज तक जारी रहेगी, जबकि फाइनल जुमेरात के रोज खेला जाएगा। कैमरामैन बाबर रियाज के साथ आतिफ परवेज, लाहौर न्यूज़। पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के ज़ेर एहतमाम सालाना कल्चरल और स्पोर्ट्स फेस्टिवल में तमाम सूबों के सकाफती रंग नुमाया रहे। तलबा ने जिमनास्टिक शो और मार्च पास्ट का शानदार मुजाहरा किया।
डायरेक्टर पंजाब कॉलेजेस और लाहौर मोहम्मद आरिफ चौधरी ने इफ्तिताही तकरीब में शिरकत की। पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस सकाफती और खेलों की सरगर्मियों में भी पेश ग्रिफिन ग्राउंड में सालाना कल्चरल और स्पोर्ट्स फेस्ट का शानदार एहतमाम। तलबा ने फेस्टिवल में तमाम सूबों की सकाफत को उजागर किया। रवायती मलबूसात ज़ेब किए तलबा ने इलाकाई तहजीब की भरपूर अक्कासी की। जिम्नास्टिक शो और मार्च पास्ट ने फेस्टिवल को चार चांद लगा दिए। रस्सा कशी, 3 लेग रेस और मुख्तलिफ खेलों के मुकाबले शायकीन की तवज्जो का मरकज बन गए। पंजाब कॉलेजेस के तलबा ने सकाफती रक्स पेश किया और आवाज का जादू भी जगाया। जिंदगी से कोई शिकवा भी नहीं है, अब तो जिंदा हूँ मैं इस नीले आसमान में। डायरेक्टर पंजाब कॉलेजेस लाहौर मोहम्मद आरिफ चौधरी ने कहा कि पंजाब कॉलेज तलबा को पढ़ाई के साथ गैर निसाबी सरगर्मियों में भी अपनी सलाहियतें दिखाने का मौका फराहम करता है। बच्चों के लिए ना गैप्स देना बहुत ज़रूरी होता है, यानी इंटरवल्स देना, पॉज देना, ताकि ये अपनी एनर्जी रिस्टोर करें और भरपूर तरीके से दोबारा पढ़ाई की तरफ चले जाएं। तो ये एक बड़ा इवेंट होता है जो साल बाद हम करते हैं और मैक्सिमम स्ट्रेंथ बच्चों की इसमें पार्टिसिपेट भी करती है। तो ये खूबसूरती है पंजाब कॉलेज जिंदाबाद, उसमें बच्चे आते हैं, बच्चे हिस्सा लेते हैं और आप देख ही रही है कि इनके चेहरे देखें, इनके फेसेस देखें, कितने खुश लग रहे हैं और अपने अपने मुताबिक सारे पार्टिसिपेशन इसमें कर रहे हैं। पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस का कल्चरल और स्पोर्ट्स फेस्ट रंगारंग सकाफत और मिली यकजहती का आकाश रहा। तालीमी इदारों में गैर निसाबी सरगर्मियां तलबा की जिस्मानी सेहत, टीम वर्क को मजबूत बनाने में कलीदी किरदार अदा करती है। कैमरामैन अदनान के साथ सामिया सईद, लाहौर। शहर के मेन शाहराह जफर अली रोड गफलत के बाद स्ट्रीट लाइट से यकसर महरूम सर शाम ही अंधेरे में डूबने लगा। जेल रोड और शाहराह कायद आज़म को मिलाने वाली मसरूफ़ तरीन शाहराह पर स्ट्रीट लाइट्स न होने से हादसात और वारदातों का खदशा शहरी परेशानी का शिकार है। मज़ीद बताएंगे अब्दुर्रहमान। जी अब्दुर्रहमान बताइएगा। बिल्कुल इस वक्त मैं लाहौर की मसरूफ तरीन शाहराह जफर अली रोड पर मौजूद हूँ, जो इंतजामिया की गफलत और अदम तवज्जुही के बायस अरसा दराज से स्ट्रीट लाइट से महरूम है। लाहौर की ये शाहराह जिसमें एक हिस्सा जेल रोड जबकि दूसरा शाहराह कायद आज़म को मिलाता है और इसमें गुलबर्ग और माल रोड के मुल्हिका इलाके, यहीं से लोग सफर करके वहां तक पहुंचते हैं। मेरे दाएं जानिब लाहौर जिम खाना जबकि बाएं जानिब लाहौर का मशहूर तरीन अस्पताल सर्जी मेड अस्पताल भी मौजूद है। मसरूफ तरीन शाहराह होने के बावजूद भी यहाँ अरसा दराज से स्ट्रीट लाइट्स का इंतजाम नहीं किया गया और ये सिलसिला सिर्फ रोड के एक तरफ नहीं है बल्कि रोड के दोनों तरफ आने वाले रास्ते, दाखिली और खारजी दोनों रास्तों पर स्ट्रीट लाइट्स मौजूद नहीं है। अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो आप देख सकते हैं कि आपको दूर दराज तक किसी किस्म की कोई लाइट नजर नहीं आ रही। लाइट ना होने की वजह से यहाँ शहरी मुतअद्दिद बार लुट भी चुके हैं। राहजनी और नकबजनी की मुतअद्दिद वारदातें उनके साथ हो चुकी हैं। इंतजामिया की अपील है कि अगर इस रोड के ऊपर स्ट्रीट लाइट का इंतजाम नहीं किया जाता तो खुदा ना खास्ता शहरी किसी बड़े साने से दोचार हो सकते हैं। जी लाहौर की आबो हवा को आलूदगी से बचाने का अज़म। लाहौर में माहौल दोस्त इलेक्ट्रिक बसों के पायलट प्रोजेक्ट का आगाज़। GPS, वाईफाई जैसी जदीद सहूलियात से लेस बसों में खुसूसी अफराद के रैम्प और ख़वातीन के लिए अलहदा सेक्शन में रखा गया है। लाहौर की आबो हवा को आलूदगी से बचाने के लिए पंजाब हुकूमत का इंकलाबी इक़दाम। शहर की सड़कों पर माहौल दोस्त 27 इलेक्ट्रिक बसों का पायलट प्रोजेक्ट शुरू हो गया। ग्रीन टाउन से रेलवे स्टेशन तक 28 किलोमीटर तवील रूट पर चलाई जाने वाली इलेक्ट्रिक बसें GPS, वाईफाई जैसी जदीद सहूलियात से भी आरास्ता हैं। इलेक्ट्रिक बसों में खुसूसी अफराद का रैंप और खवातीन के लिए अलहदा सेक्शन भी रखा गया है। बसों में CCTV कैमरे नस्ब, मुसाफिर किराए की अदायगी डिजिटल वॉलेट और कार्ड्स के जरिए करेंगे। खसूसी मोबाइल ऐप के जरिए बसों की ट्रैकिंग भी मुमकिन होगी। इलेक्ट्रिक बसों के कॉन्ट्रैक्टर शाहिद मलिक ने बताया कि बसों में असरे हाजिर की तमाम सहूलियात फराहम की गई हैं। जो इनिशिएटिव लिया है पंजाब के लिए, स्पेशली पब्लिक, जनरल पब्लिक के लिए, डिग्निटीज़ के लिए और जो स्पेशल क्लास है उसके लिए तो हर कोई लेता है। ये इन्होंने जनरल पब्लिक के लिए लिया है जिसमें आम बाइकिया जो लोग यूज़ करते थे या पैदल जाते थे या पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते थे उनके लिए बेसिकली ये इनिशिएटिव है और ये ऑलमोस्ट 80 पैसेंजर्स एक बस कैरी कर रही है और 27 बसेस का ये प्रोजेक्ट है। ग्रीन टाउन से शुरू करके और रेलवे स्टेशन तक इसने जाना है
اور اس میں زیادہ تر جو مستفید ہوں گے وہ جنرل پبلک ہوگی۔ لاہور شہر میں الیکٹرک بسیں روزانہ 17,000 مسافروں کو سفری سہولیات فراہم کریں گی۔ کیمرہ مین ساجد الیاس کے ساتھ زین العابدین، لاہور نیوز۔ صوبائی وزیر ٹرانسپورٹ اینڈ ماس ٹرانزٹ بلال اکبر خان نے کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے اعلان کے مطابق یتیم طلباء کو بائکس مفت فراہم کی جا رہی ہیں۔ اگلے مرحلے میں مزید 1 لاکھ بائکس دی جائیں گی۔ پنجاب میں بلا سود بائکس فراہمی کی اسکیم کے حوالے سے اہم پیش رفت۔ صوبائی وزیر ٹرانسپورٹ بلال اکبر خان کی زیر صدارت اسٹیئرنگ کمیٹی کا 19واں اجلاس محکمہ ٹرانسپورٹ، ATC، HED، انفارمیشن اینڈ کلچر ڈپارٹمنٹ اور بینک آف پنجاب سمیت دیگر محکموں کے افسران نے شرکت کی۔ سیکرٹری ٹرانسپورٹ اینڈ ماس ٹرانزٹ عمران سکندر بلوچ نے بریفنگ دی۔ وزیر ٹرانسپورٹ کی تمام اہل طلباء کو بائکس کی جلد فراہمی اور ویٹنگ لسٹ میں شامل امیدواروں کو بھی موقع دینے کی ہدایات۔ صوبائی وزیر ٹرانسپورٹ بلال اکبر خان نے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے اعلان کے مطابق یتیم طلباء کو بائکس مفت فراہم کی جا رہی ہیں۔ اگلے مرحلے میں مزید 1 لاکھ بائکس دی جائیں گی۔ سواری سے خود مختاری کا خواب حقیقت بنتا جا رہا ہے۔ وزیر ٹرانسپورٹ پنجاب نے مزید کہا ہے کہ بلا سود بائک اسکیم نہ صرف طلباء کے لیے سفری آسانی فراہم کر رہی ہے بلکہ انہیں خود مختار اور اعتماد بھی دے رہی ہے۔ آذربائیجان کے ٹریڈنگ ہاؤس کی افتتاحی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ وزیر خزانہ مجتبیٰ شجاع الرحمان اور سفیر آذربائیجان کی شرکت، صوبائی وزیر صنعت و تجارت چودھری شافی حسین بھی شریک ہوئے۔ نجی ہوٹل میں آذربائیجان کے ٹریڈنگ ہاؤس کی افتتاحی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ چیئرمین پنجاب سرمایہ کاری بورڈ منتہا اشرف، مختلف ممالک کے کونسل جنرلز کی شرکت، بزنس کمیونٹی کے نمائندوں نے بھی تقریب میں شرکت کی۔ چودھری شافی حسین کا کہنا تھا لاہور میں آذربائیجان کے ٹریڈ ہاؤس کا قیام اہم اقدام ہے۔ تجارتی وفود کے تبادلوں اور عوامی سطح کے روابط بڑھانے سے 2 طرفہ تجارت کو فروغ دیا جا سکتا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف جلد آذربائیجان کا دورہ کریں گے۔ مجتبیٰ شجاع الرحمان کا کہنا تھا پنجاب میں سرمایہ کاری کے لیے سازگار ماحول اور مواقع موجود ہیں۔ پنجاب حکومت کا فوکس نئی سرمایہ کاری کے ذریعے روزگار کے مواقع بڑھانا ہے۔ پنجاب گورنمنٹ is eager to strengthen its collaboration with Azerbaijan in emerging sectors such as digital finance, artificial intelligence and the green economy. تقریب سے ہینا پرویز بٹ، آذربائیجان کے سفیر اور دیگر نے بھی خطاب کیا۔ کیمرہ مین بابر ریاض کے ساتھ عاطف پرویز، لاہور نیوز۔ فی الوقت اتنا ہی۔